Now I introduce our second expert today, Professor H.H. Awasthi sir, former head, Department of Rachna Sharir, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi. Sir has a teaching experience of over 23 years, in which he has also served 10 years as the head of the department, during which he has also supervised 12 PhD scholars and 70 PG scholars. Sir also has a vast experience in the field of research. Sir was awarded the best PhD during his times. He has publications, 5 books, over 150 research articles, and he has also presented over 60 seminar papers. Sir is also actively present on digital platforms as well. He is the editor of 3 video cassettes of human dissection methodology and editor of a cassette on National Shari also, which is based on Ayurveda traumatology. Sir is also running a YouTube channel under the name Avasthi's Ayurveda Anatomy, Yoga and Spirituality with over more 350 educational videos. Sir, it is our privilege that you have joined us today. I now welcome you for the session. Avasthi sir. I welcome you all, and I want to congratulate Professor Sunil Kumar Yadav, who has organized this webinar, and also Sarvanand Sonwal, Honorable Cabinet Minister, Minister of Ayush, Professor Sanjeev Sharma, VC and Director of National Institute of Ayurveda, deemed to be University, Rajasthan, and other departmental professors. एंड मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर सुनील कुमार यादव को स्पेशली मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर होने के नाते एक बहुत बड़ा काम उन्होंने ये किया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। तो कृपया क्लैप करें सब जने। एंड अदर हिज टीम मेंबर्स, द कोऑर्डिनेटर्स, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर विकास भटनागर, डॉक्टर संदीप लहेंगे, डॉक्टर नेहा उद्याना, Isha Harshwani and Dharmendra Chaudhary, and PhD scholar Lovepreet Kaur, and our first renowned speaker Professor KTJ Krishnan, and other senior persons who have joined this webinar. One of them is Professor Dinkar Sharma, Professor K.N. Singh, Professor Vijay Lakshmi Gautam, Lakshmi, and Nilesh Korde from Goa, and Dr. Nidhi Srivastava. Many professors and teachers have joined this webinar. So I want to congratulate again Professor Sunil Kumar Yadav, Dean of Students. Now I am coming on my topic, Sat Chakra and its applied aspect. This is the Kundalini Shakti, the Jagrana of the Kundalini Shakti. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwari, Guru Sakshat Parbrahm Tasmai Shri Guru Namaha। तो ये प्रोफेसर डीजी थट्टे सर हमारे गुरु का फोटो है। Anatomy is the master key of all medical sciences and all branches of all medical disciplines. And I am professor of this key. I want to implant this in your brain. It is my first sentence in first period of any batch. और ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीयों को ये समझाया जाए कि अंग्रेजी सबसे ऊपर है और उनकी संस्कृति में कोई दम नहीं है, इंग्लिश ही सबसे ऊपर, फॉरेनर ही सबसे ऊपर। तो और उससे पहले कोई गरीब या वो कोई नहीं था। तो अगर हमें फिर से डोमिनेट करना है तो हम इसको रिवर्सल करना होगा। मीन्स स्वदर्शन, स्वदर्शन मीन्स अंतर में देखो। तो अंतर में क्या देखो? अंदर की एनाटॉमी देखो, अंदर की फिजियोलॉजी देखो। और गॉड क्या चीज होता है? सच्चित आनंद घन। गॉड को बताया है हमारे ग्रंथों में कि सच्चित आनंद घन है। और चित्त क्या चीज है? एक्टिव स्टेज ऑफ द मन। मन और मैन एक ही चीज है, क्योंकि देखिए मैन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और वो मन से ही बना है। तो आपको पता है
कि ये 3 ऐषणाएं हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, इनके डिटेल पे नहीं चल रहे, एम ऑफ लाइफ बताया, और इष्ट सिद्धियां कौन सी हैं ये वो बताई गई। सत्व आत्मा शरीर से शरीर बन रहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अभ्यास और वैराग्य से हमको सब चीज की प्राप्ति होती है। और ये 3 मार्ग हैं किसी भी चीज की सिद्धि के, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, और इन्हीं से 60 चक्र की सिद्धि भी होती है। इसलिए मैंने ये स्लाइड लगाई है। इन द डिपार्टमेंट जो 60 चक्र और नाड़ी और नर्वस सिस्टम के रिसर्च के लिए जो सबसे पहला वर्क हुआ IMS में, तो स्टडी ऑन न्यूरो फिजियो एनाटमी इन आयुर्वेदा विद स्पेशल रेफरेंस टू वात दोष, दिस इज माय PhD वर्क एंड गाइड इज प्रोफेसर संगीता गहलोत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वात इन माय लैंग्वेज? वात की निरुक्ति है वा गति गंधनियो, तो गति का मतलब ऑल द मोटर नर्व्स, गंधन मीन्स सेंसरी नर्व्स क्योंकि स्मेल करता है, तो ऑल द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स मीन्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वात दोष। इंद्रियाणाम मनोनाथस्तु मारुतः है। ये जो 11 इंद्रियां हैं, तो जिसमें से जो 10 हैं उनको और 11वीं को भी मन ही कंट्रोल करता है। और मन को और कौन कंट्रोल करता है? वो मारुत है, यानी कि वात। तो ये तो वात को मन कंट्रोल करता है, मन को वात कंट्रोल करता है। और ये जो सेकंड थीसिस हुई, जो रिसर्च वर्क हुआ, इससे रिलेटेड स्टडी ऑफ मनोवैश्रोतस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स इन आयुर्वेद, ये अंडर मी हुआ। तो इसके को गाइड हम रहे। और मन होता क्या है? लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भाव है उच्चा सति ह्यात्म इंद्रियार्थानाम सन्निकर्ष न वर्तते। तो इस फिगर को देखें, आप ध्यान से सोचें और देखें कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। तो द लाइन्स आर फिक्स्ड, फाइनल and unchanging. However, your mind will organize those lines into a picture with meaning. The meaning your mind gives to the lines will shift as your perception shifts. जो आप देखना चाहते हैं वही इसमें दिखता है। इसमें देखिए 2 चीजें दिख रही हैं, फिर से ध्यान से देखेंगे। एक बूढ़ी औरत दिख रही है और एक जो है यंग बच्चा दिख रहा है। तो जब आप इसको, मैं एरो ले रहा हूं, इसको आप नोज मानेंगे और इसको लिप्स मानेंगे, तब ये बूढ़ी औरत है। और जब आप इसको आईज मानेंगे और इसको चिन मानेंगे, ये जो है जहां पे एरो है मेरा, और ये हेयर्स हैं और ये नेक है बच्चे की, तो एक यंग बॉय दिख रहा है। तो ये देखने का तरीका होता है सिर्फ। तो मन क्या है? मन एक है, उधर मन नहीं 10-20 अणु है, एटॉमिक पावर है उसमें। एटॉमिक पावर होने से हर व्यक्ति में मन है, तो एटॉमिक एनर्जी है, दृष्टि, बुद्धि और विवेक है। तो विवेक जो है सरस्वती का जो है के पास है, हंस है उसका वाहन जो विवेक रखता है, त्रिकाल दृष्टि होती है उसी से। और ये दुग्ध और पानी की तरह मन और वात मिले हुए हैं, उनके कर्म मिले हैं, उसकी प्रवृत्ति मिली हुई है। तो उन दोनों को एक दूसरे से कंट्रोल किया जाता है। हर जो प्रदीपका का है, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है, इंद्रिय पंचक है, उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो है ब्रॉडमैन्स ने एरिया बॉडी में बताए। तो सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं जिसे नाभि भी कहते हैं और न्यूक्लियस भी कहते हैं, जो ब्रेन में है। और जो आपकी इंद्रियां हैं वो एक लिमिटेड एरिया को देख सकती हैं। जैसे विजिबल लाइट आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे देखें विजिबल पोर्शन सिर्फ इतना है, तो उससे पहले और उससे बाद वो आपको विजिबल नहीं है। तो इस पावर को बढ़ाना ही योग है। और आज हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से जो सुनने की शक्ति है, तो वो हम मशीन से बढ़ा सकते हैं। और बॉडी 2 तरीके से कंट्रोल्ड होती है, एक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम से। तो दोनों चीजों में को समझना है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये जो प्लेक्सस की बात करते हैं, जो हम चक्रों की बात कहते हैं, जो लोग कहते हैं दिखाए नहीं जा सकते, वो हम डिसेक्शन में दिखाते हैं। और हमारे हर रिसर्च स्कॉलर ने उन प्लेक्सस को अपनी थीसिस में लिखा है। तो वो हर ऑर्गन को, बॉडी के हर ऑर्गन को एक तो सोमेटिक नर्व सप्लाई कर रही थी, इन जनरल रूल में बता रहा हूं, और सिंपैथेटिक करती है और पैरासिम्पैथेटिक करती है। तो ये 3 चीजें करती हैं। तो जो हमारी 3 त्रिविध प्रधान नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तो इड़ा जो है पैरासिम्पैथेटिक को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला सिंपैथेटिक को करती है, सुषुम्ना जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस द स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो तीनों की तीनों हर ऑर्गन को कर रही होती हैं। और वो कैसे कंट्रोल करना है,
बॉडी कैसे फंक्शनेट करती है, ये आपके बिहेवियर, आपके योग, आपके ध्यान, आपके इंटेलेक्चुअल पावर पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज कंट्रोल कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि पैंक्रियाज है तो डायबिटीज हो रही है, थायराइड है, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो वो भी बॉडी को कंट्रोल करती हैं, तो उनकी डिसीज होती है। तो ये हर एक जो चक्र है उससे रिलेटेड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस बात को समझ लें, आगे आएगा वो चीज, तो ये आप पढ़ लें। इसमें यही है कि जो बॉडी को कंट्रोल करना है वो अभ्यास और वैराग्य से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्लाइड है। मन है स्थैर्य स्थिरो वायु, मन के स्थिर करने से, मेडिटेशन करने से, और जो उसमें इम्पल्सेस आती हैं, जो वायु है वो इम्पल्स है, सेंसरी हो सकती है, मोटर हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करना है। 1 मिनट में कितने थॉट आपके ब्रेन में आ रहे हैं, तो सैकड़ों जब आने लगते हैं तो वो डिसीज हो जाती है, 4-6 रहते हैं, 10 तक रहते हैं तो आप स्वस्थ हैं, कितने कम करते चले जा रहे हैं, उतना ही आपका हायर मेडिटेशन है। तो ये बात हुई, तो उसको स्थिर करना है, और प्राणवायु उसको रोक करके, कुंभक करके, तब मन को स्थिर करना है। इस श्लोक का मतलब ये है, चले बाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, ये भी बात वही कही गई है। जब बात चलती है तब चित्त चलता है, यानी कि मन चलता है, और जब बात रुक जाती है तो मन भी निश्चल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आते हैं हम, मन है कहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस में मन है, और हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, तो एंडोक्राइन मास्टर ग्लैंड है और उसको मन कंट्रोल कर रहा है, तो मन पूरे होल एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो, इसको सब आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। When ego is lost, limit is lost, you become infinite, kind, beautiful। तो पहले ईगो को छोड़ना है, ये प्राइड अगर आपके है तो आप निश्चित गिरेंगे, और ये प्राइड ईगो को छोड़ दें तो आप उस छोटी सी डाल के सहारे भी बच जाएंगे। तो जीवन इसी तरीके से है, और बॉडी में हम लोग 2 तरीके की थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग एंड निगेटिव थिंकिंग, 2 वॉल्स इन ए सेम ब्रेन, मतलब हमारे दिमाग में इविल थॉट्स भी हैं और गुड थॉट्स भी हैं। आप पिकअप कौन से कर रहे हैं, उस पे आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करेगी। तो गुड थॉट्स को पिकअप करना है, तो पॉजिटिव लाइफ इज द डिवाइन लाइफ, और इसीलिए हमारा जो फेसबुक का और उसका स्लोगन है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, तो हितकर फॉर अस। तो ये अष्टांग योग है। अब जो दूसरी थीसिस की बात करें, जो पीएचडी की थीसिस थी, जो ये एसोसिएट प्रोफेसर हो गई हैं, डॉक्टर मिनी केवे खुर्जा में हैं, जहाँ पीजी है, तो उन्होंने स्टडी की हमारे अंडर में, स्टडी ऑन नाडीज इन तांत्रिक लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम। तो ये है वो नाड़ी जो आप देख सकते हैं मॉडर्न एनाटॉमी के हिसाब से, और देखिए सिमिलर है, ये कमल की जो डंडी है, नाल है, वो फिगर में आपको दिखाई जा रही है, हम स्पीड में चलेंगे। और वही चीज यहाँ पर देखिए कि सिंपैथेटिक चेन और पैरा सिंपैथेटिक यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो नर्व कैसे निकल रही है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड से कैसे नर्व आ रही हैं, तो ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, केवल मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो मेल और फीमेल के जो ब्रेन में और मैटर में क्या डिफरेंस होता है, तो एनालाइजिंग बेटर सिस्टमेटिक वे में करता है मेल, और फीमेल बेटर एम्पैथिक्स होती है, मतलब उसमें भावनाएं अधिक होती हैं। सेल नंबर 4% मेल में ज्यादा है, और मास ऑफ ब्रेन 100 ग्राम मेल में ज्यादा है। सेलुलर कनेक्शंस हैं फीमेल में, मोर डेंड्राइट्स हैं, और कार्पस कैलोजम फीमेल का लार्ज है, और लैंग्वेज मेल में लेफ्ट ज्यादातर रहती है और फीमेल में दोनों ही पाई जाती हैं। तो इस तरीके से शिव संहिता के अनुसार ये नाड़ियों के 14 जो नाड़ी बताई, फिर 3 नाड़ियां आती हैं, तो ये सब उन्हीं की बात हो रही है। और जो ये सर्प दिखाया गया, जो बार बार सर्प की बात होती है जो है, तो वो ये है, देखिए, तो प्रिमिटिव जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड तक है, उसको यहाँ से देखें, ये यहाँ तक, और उसके ऊपर जो है सेरिब्रम, तो वो पूरा पूरा जो कॉन्शियसनेस है, और सेरिबेलम, तो वो जो आता है वो जो है और भी हायर ब्रेन है, जो ह्यूमन में ज्यादा डेवलप हो गया है, और इसलिए उसके सेंटर्स ज्यादा फंक्शन करते हैं, और उसी से 10th गेट खुलता है। द इफेक्ट ऑफ द प्राणायाम, प्राणायाम से नाड़ी का शोधन होता है। वेंट्रिकुलर जोन, जो वेंट्रिकल्स हैं,
वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व्स की बात हुई, पाथवेज हुए, ट्रैक्ट की बात हो गई। तंत्र क्या है? तंत्र है नियमन। तो तंत्र जो है वीणा है माँ सरस्वती की, जिसमें तार हैं, और तांत्रिक है तो उनको जो हम कंपेयर करते हैं, तो दीज आर द 6 चक्रास। तो ये आप देखिए यहाँ नॉट लगी रहती हैं, वायर्स लगे रहते हैं वीणा में। तो यही है नाड़ियां बॉडी की और चक्रास। तो ये नाड़ियों की अलग अलग आचार्यों ने क्या संख्या बताई है, ये हमने उसमें मेंशन किया है अलग अलग किताबों का। तो ये वो नाड़ियां हैं। और आयुर्वेद में नाड़ी से क्या है कि नाड़ी व्रण है, नाड़ी यंत्र हैं। और तो यहाँ पे जो आयुर्वेद में नाड़ी की बात कर रहे हैं तो वहां पे पल्स को ज्यादातर लेते हैं, और जब योग में बात करते हैं तो वहां नर्वस सिस्टम और नर्व्स को लेते हैं। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। तो नाड़ीज जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो हमने रिसर्च कराई, जो आशुतोष तिवारी ने की, एमडी में जो टॉपिक दिया गया इड़ा पिंगला सुषुम्ना में, आगे उसका नाम आएगा, तो उसने ये टेबल बनाई है। कम से कम 40-50 जो किताब है, उपनिषद हैं, ग्रंथ है योग के, उसके बेस पे बताई। सुनील यादव जी को हमने ये पीपीटी भेज दी है, आप सबको मिलेगी। तो ये देखिए सारे डिफरेंसेस हैं और क्वालिटीज ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स, और ये क्रॉस कर जाती है इड़ा पिंगला। तो लेफ्ट ब्रेन जो है पिंगला को रिप्रेजेंट करता है, सोलर एंड मैस्कुलिन बेस्ड और रीजन, ऑब्जेक्टिव रूलिंग, मैथमेटिकल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, एक्सट्रोवर्टेड, विगरस, क्रोनोलॉजिकल, जजमेंटल। और ये सारे फैक्टर जो आप देख रहे हैं, एकेडमिक देख रहे हैं, एनालिटिकल देख रहे थे, ये चीजें लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट करता है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से और वो करता है। तो वो पिंगला है नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी से ये सारी, इसका मतलब ये निकला जब हम पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो ये फंक्शन और अच्छी तरीके से होंगे। तो जब हम जो है राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे तो ये फंक्शंस इंप्रूव होंगे। इट इज द की पॉइंट। तो इनको कैसे इंप्रूव करना है? तो पिंगला नाड़ी का जो है जब हम स्वर चलाएंगे और उसका करेंगे तब ये चीज होगी। अब जो राइट ब्रेन है वो इड़ा नाड़ी को करता है, ल्यूनर है, फेमिनाइन है, स्पिरिचुअल है, सब्जेक्टिव है, इमेजिनेटिव है, पोएटिक है, ग्लूमी है, ये इसके फैक्टर्स है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो आप पढ़िए इसको, इमोशंस हैं, तो वो सारे राइट ब्रेन जो है परफॉर्म कर रहा है। तो जब हमें अगर इन एक्टिविटीज को बढ़ाना है, इनको प्रमोट करना है, तो हमें इड़ा नाड़ी का प्राणायाम करना होगा। और नाड़ी शोधन में तो दोनों को बैलेंस करके करते हैं। और इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में मैंने ये डिफरेंस आपको बता ही दिया है कि इड़ा नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक को प्रेजेंट करती है और पिंगला जो है सिंपैथेटिक को। और दीज आर द डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। द सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है। तो ये टेबल दी है हमने, उस टेबल को आप पढ़ भी सकते हैं, नर्वस सिस्टम की बुक से लिया गया है मॉडर्न की। तो ये आप देखें, मैं बताता चल रहा हूँ, स्लाइड ज्यादा है इसलिए स्लाइड पे समय नहीं ज्यादा लगाएंगे हम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, तो ग्लैंड्स कौन सी कर रही हैं और किस ग्लैंड के ऊपर सिंपैथेटिक का क्या एक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या एक्शन है, ये याद होना चाहिए एक चिकित्सक को। तब वो जो है उसको ड्रग ठीक से दे सकेगा। अगर हार्ट के फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक क्या करता है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, डायलेट्स द बीटा रिसेप्टर्स, कॉन्स्ट्रिक्ट्स अल्फा रिसेप्टर्स, ये फंक्शन है सिंपैथेटिक का, मतलब पिंगला नाड़ी का। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हर एक के ऊपर हमने टेबल दे दी कि ग्लैंड्स पे क्या कर रहा है। तो ग्लैंड्स में ये जो है ड्राइनेस आती है सिंपैथेटिक से, पिंगला से। तो ये सारे फंक्शंस हमने इस टेबल में शो किए हैं। एंड योगा का ब्रेन जो अभी हम बात कर रहे थे, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, तो क्या करते हैं, तो राइट वाला जो है शक्ति, ब्रेन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए, तो ये जो है इधर जो है लेफ्ट वाला शिव को, चेतना को कर रहा है, और ये शक्ति। तो हम लोग शक्ति के पुजारी हैं। और फिर है क्रिटिकल स्टडी ऑफ इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ये थीसिस का वो दिखा रहा हूँ, आशुतोष तिवारी ने ये वर्क किया है। जो ये पूरी पहले की टेबल हमने दिखाई, ये दिस इज रिव्यूड बाय डॉक्टर आशुतोष तिवारी। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर आशुतोष तिवारी। तो ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, तो स्वर चिकित्सा इन्होंने करी
इसके माध्यम से, और ये मैंने उसको बताया कि कैसे कंट्रोल कौन सा ये मॉडर्न साइंस की ओर से है कि आप सिंपैथेटिक कौन कौन से पे फंक्शन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक फिगर शो कर रहा है, और ये सब बुक्स में अवेलेबल हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ द नाड़ीज, तो ये जो है नाड़ी जो होती है वो प्राणायाम से ही प्यूरिफिकेशन इन नाड़ियों का होता है। तो सृष्टि है तो हमें अपनी सृष्टि को प्योर रखना है, इमोशनल रहे। तो व्हाट इज द एनाटमी? एनाटमी मेरी दृष्टि में खाली रिलेशंस हैं, जो बॉडी के रिलेशंस हैं। गुरुजी कहते थे कि सबसे पहले आप बनियान पहनेंगे, फिर शर्ट पहनेंगे, फिर स्वेटर पहनेंगे, फिर कोट पहनेंगे। अगर क्रम बदल देंगे तो रिलेशन आपने बदल दिया और डिसीज होगी और मजाक के पात्र होंगे। ऐसे बॉडी में है तो हर एक चीज का एक डेफिनेट जो लोकेशन है, डेफिनेट रिलेशंस हैं। जब वो रिलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक बेटी का रिलेशन एक पत्नी का है, एक माँ का है, और ये रिलेशन प्योर रहेंगे तभी मूलाधार चक्र ठीक रहेगा, विद प्योरिटी ऑफ रिलेशंस विद बॉडी ऑर्गन्स। और ये जो श्लोक हमने लिया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यान्गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। दो बात इसमें केवल इंपॉर्टेंट है। पहला है शांताकारं, आपको शांत, काम एंड कूल रहना चाहिए, ठीक भगवान विष्णु की तरह। और दूसरी बात, भय आपको नहीं होना चाहिए, जो लास्ट लाइन में है। तो भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की गई कि हमें भय ना हो, फियर। तो फियर नहीं होना चाहिए। अगर फियर है तो डिसीज्ड है। और ये कुंडलिनी है, कुंडलिनी जागरण की बात होती है। कोष की अभी चर्चा चली थी, लहंगे साहब उसकी चर्चा कर रहे थे और सुनील कुमार यादव जी ने भी की। तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। क्योंकि हर एक का नजरिया अलग है, हम जो है सिस्टम से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो जब अन्नमय कोश की बात है तो जीआईटी आ रहा है, प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहा है, मनोमय कोश और विज्ञान में और आनंदमय में चलेंगे तो ये ब्रेन बॉक्स आ गया। और ब्रेन में फिर ये हायर फंक्शंस हैं। तो ये मोटी बात है। और ये सेलुलर लेवल पे भी है। तो टू बर्ड्स रिसाइड्स इन दिस ट्री, बॉडी में एक परमात्मा रहता है, ईश्वर में लिखा है। देखिए आयुर्वेद ये नहीं मान रहा है, लेकिन वो मान रहा है कि आत्मा भी रहती है और परमात्मा भी रहता है, दोनों एक साथ रहते हैं। और ये परमात्मा उसी तरीके से है, वो केवल उसको अपने पुत्र को जैसे हम लोग घुमाने ले जाते हैं पार्क में और कहते थे खेलो, और फादर नहीं खेलता तो पुत्र खेलता है, फिर पुत्र को ले जाते हैं कि चलो भाई। तो पुत्र जब तक पिता का कहना मानता है तब तक वो सुरक्षित है, और जब वो उसका कहना नहीं मानता, माया में लग जाता है, तब उस कष्ट में आ जाता है। तो ये वी आर द पुजारी ऑफ शक्ति एंड शिव, ये मैंने बताया। तो शक्ति पीठ है और नौ दुर्गे का टाइम निकला, तो हर बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से ये हम लोग पूजा करते हैं। ये चक्रा, व्हाट आर द चक्रास? तो ये एक एक चक्र है जिनकी अभी डिटेल में चर्चा हमारे पूर्व वक्ता कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ चक्र, चंक्रमति इति चक्रः, व्हील ऑफ लाइट। तो द स्ट्रक्चर which continuously moves in a circular direction is chakra. These are actually the center of electromagnetic energy that are located throughout the body. They provide a way for pranic energy to enter and exit our body and help to regulate all types of energy flow, physical, mental, emotional and spiritual. तो ये चक्र हुए। चक्र की डेफिनेशन मैंने बताई। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यह भगवत गीता का है ये। तो अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, मोशन एंड इट्स कंटिन्यूटी is denoted by the word chakra, also denoted as the flow of knowledge. तो जैसा पूर्व वक्ता वात की बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि चक्र में मोशन है, गति है, वात है, तो इसलिए क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसकी इसलिए वो बार बार वात 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 कर रहे थे, वात की बात हो रही थी। तो उसको ही कंट्रोल करना है। वायुदेव भगवान, उसको भगवान भी कहा गया। क्यों भगवान कहा गया? क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में चीज कंट्रोल नहीं होती। आप हार्ट के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल रेस्पिरेटरी रेट को एक हद तक कर सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आपको सांस भी लेनी पड़ेगी। तो ये इसलिए है कि स्वयंभू है। उसके लिए एक बात के लिए टर्म आया स्वयंभू, मीन्स ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है। चक्रास सर्किल
a variety of senses symbolizing endless rotation of the Shakti and pranic energy. Chakras denotes the yantra or the mystic diagrams, different nerve plexus within the body. ये है एनाटॉमी की दृष्टि से। तो इसकी बातें हो रही हैं, ये डिटेल्ड है। और षट चक्र षोडशाधारम त्रिलक्षणम व्योमम पंचकम स्वदेहे यो न जानती तस्य सिद्धि कथम भवे। तो जो षट चक्र और षोडश आधार और त्रिलक्षणों और इन व्योम पंचक को नहीं जानता उसको सिद्धि नहीं मिलती, मतलब मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा कहा है। और वेदों में सबसे पहले जो है इसकी चर्चा आई। अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पुर्योध्या तस्याम हिरण्यः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। तो वेद में सबसे पहला है, तो वहां पे ये अष्ट चक्र बताए गए हैं। और फिर ये गोरख संहिता है जिसमें दलों की संख्या बता दे, किसमें कितने दल हैं, तो इनकी बात हो रही है। वाचस्पत्यम के अनुसार ये बताया। तो अब हम डिटेल में ना चल के थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो ये व्योम चक्र है टॉप ऑफ द हेड, ध्रुव चक्र है मिडिल ऑफ द आईब्रोज, अनाहत चक्र हार्ट रीजन, स्वादिष्ठान चक्र रीजन ऑफ द ग्रोइन, मूलाधार चक्र रीजन ऑफ द एनस और द पेल्विक रीजन और द पेरिनियम नियर द पेरिनियम, नाभि चक्र मिडिल ऑफ द नेवल, कंठ चक्र थ्रोट रीजन and Tala chakra base of the tongue and Brahmarandra chakra located in the skull at its top। तो ये अलग नव चक्रा की बात हुई, अलग आचार्य की बात है। तो ये वेरियस चक्रा के नाम, इसमें 7 चक्र जो ज्यादातर किताबों में लिखे हैं और हम उन्हें पढ़ते हैं वो यहाँ पर दिए। और इस डायग्राम में देख लें कि इड़ा पिंगला की भी देखिए स्थिति यहाँ दिखाई गई है। ये राइट साइड में पीले रंग की ये पिंगला दिखाई गई है, और ये जो इस साइड में ये जो लाइन जहाँ मेरा एरो चल रहा है वो जो है इड़ा है, और बीच में ये सुषुम्ना है, और ये बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये चक्रों की स्थिति बताई गई है। और सबसे ऊपर सहस्त्रार है, मैं एक तरीके से वो गॉड से मिलाने के लिए ये पोर्टल वे है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 चक्रास है जिसकी चर्चा हमारे पूर्व मित्र कर चुके हैं, इसलिए अब मैं उनको केवल स्लाइड दिखाऊंगा। मूलाधार चक्र का ये है, एक एक चक्र के ऊपर ये स्लाइड्स हैं जो किताबों में मौजूद है, कोई नई बात नहीं है। रिलेशन ऑफ द चक्र विद एंडोक्राइन सिस्टम, मूलाधार में टेस्टिस आ रही हैं, ओवरीज आ रही हैं स्वादिष्ठान में, और मणिपुर पैंक्रियाज एंड सुप्रानियल ग्लैंड, अनाहत में थाइमस, और विशुद्ध में थायराइड, और आज्ञा में पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। तो ये जो मैंने पहले बोला था कि हर एक चक्र से रिलेटेड एक ना एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है, उसके फंक्शन पे, तो फंक्शनल एनाटॉमी पे उसका कंट्रोल है। तो चक्र इन सिद्धा एंड मॉडर्न को रिलेट्स कि कौन सा चक्र किससे वो रिलेट हो रहा है। रिलेशन ऑफ द चक्र विद लोक एंड त्रिगुण, इनके लोक भी बताए गए हैं कि आज्ञा चक्र का सत्यलोक है, विशुद्ध का तपोलोक है, अनाहत का जनोलोक है, मणिपुर महरलोक, और स्वादिष्ठान स्वरलोक, और मूलाधार भुवरलोक। और जो दो ये हमने दिखाए कि पहले 2 जो है सत्व, बीच के 2 रजस, और लास्ट के 2 तमस क्वालिटी से रिलेशन रखते हैं। तो साइंटिफिक वर्क थोड़ा सा तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब ग्लिम्स दिखाऊंगा। तो साइंटिफिक वर्क हैज डन इन डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर रिलेटेड टू psychophysiological aspects of the nadis and chakras, means the nervous system of Ayurveda. So this is the first work which is done by me, और यही बीज है जिसमें कम से कम 15 हमने विजनरी थॉट उसमें दिए हैं जिससे एक एक से हम लेकर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और दिस इज द रिसर्च पेपर एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ द शुक्र निष्क्रमण इन आयुर्वेद एंड इट्स कोरिलेट्स। तो ये जो है ये चक्र का जो स्थान है, जो ग्लैंड है, उसी की बात, उसी के फंक्शन की बात है। स्टडी ऑन न्यूरोफिजियो एनाटॉमी इन आयुर्वेद विद स्पेशल रेफरेंस टू ज्ञानेंद्रिय, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ऑफ वात दोष इन आयुर्वेद, दिस इज द रिसर्च पेपर। ये इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। अब ये योग मीमांसा में, ये हमारे एक स्टूडेंट है फिजिकल एजुकेशन के, तो योग मीमांसा में इनका छपा है पेपर, effect of pranayam on mental health and physical fitness in healthy university students। तो इन्होंने 150 स्टूडेंट्स के ऊपर काम किया है, 3 ग्रुप बनाए हैं, और उसके रिजल्ट्स हैं कि किस तरीके से फिजिकल और मेंटल जो है परफॉर्मेंस बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस इन हेल्दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात हो चुकी। इफेक्ट्स ऑफ प्राणायाम
फिर है मेडिटेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर साइकोसोमेटिक फिटनेस, अभिषेक आनंद का ये रिसर्च पेपर है। और स्टडी ऑफ मनोवैश्रोतस जो हमारे अनूप कुमार मिश्रा हैं, गाइड उनके प्रोफेसर जे एस त्रिपाठी का चिकित्सज्ञ हैं, को गाइड जो भविष्य में डीन होने वाले हैं प्रोफेसर के एन द्विवेदी, एक्टिंग डीन है इस टाइम, और को गाइड हम है। तो उनका ये पेपर है मनोवैश्रोतस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। और स्टडी ऑफ नाडीज एंड तांत्रिक लिटरेचर, जिन मिनी केवी जी की बात कर रहे थे जो एसोसिएट प्रोफेसर है, बहुत टॉप का ये वर्क है, इसको कोई पढ़ेगा तब समझेगा। तो वो वर्क क्या है और उसके जो रिसर्च पेपर है उनके नाम गिनाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ उपनिषद इन योग एंड तांत्रिक रिव्यू, जो ये तंत्र शारीर है उसका रिव्यू इन्होंने इस पेपर में किया है। स्टडी ऑन डाडी इन तांत्रिक लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को से कोरिलेट किया इस पेपर में, AAMJ से ये छपा है। और तंत्र विज्ञान ये पेपर है इनका, तंत्र योगा एंड कुंडलिनी योगा, ये मिनी केवी जी का ही पेपर है। और द चक्रास द ट्रू व्हील्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये भी मिनी केवी जी का पेपर है, IJAAR में छपा है। और नाडीज इन तांत्रिक लिटरेचर ये इनका छपा है। और फिर हमारे ये दूसरे हैं आशुतोष तिवारी, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना की, उनका ये एक इंटरनेशनल पेपर छपा था, रिव्यू पेपर, इफेक्ट ऑफ चंद्र नाड़ी स्वर प्राणायाम लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इन रक्तगत वात। एंड इन्होंने दो चीजों पे ये वर्क करा था, एक तो रक्तगत वात पे किया था और जो है अर्धाव भेदक, इन दो के ऊपर लिए थे। प्रोफेसर JS त्रिपाठी ने इन्होंने केसेस दिए थे और अच्छे रिजल्ट मिले। इन्होंने इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो ये स्वर योग से चिकित्सा की थी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये भी पेपर रिसर्च पेपर आशुतोष तिवारी का है। और मीनू खरे जी का एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जो आज प्रिंसिपल भी रही और आज प्रोफेसर है छत्तीसगढ़ में, तो उनका ये पेपर है नस्य से रिलेटेड, नासिका नोज की यहाँ पे क्लिनिकल एनाटमी है। क्रिटिकल स्टडी ऑफ मूलाधार चक्र इन फीमेल्स इन एनाटॉमिकल कोरिलेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ये सब रिसर्च वर्क हैं MD के, 3-3 साल में काम लोगों ने किया है और PhD में, तो इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये मूलाधार चक्र है और जिसका डॉक्टर श्वेता ने ये वर्क किया है, और इनकी को गाइड है डॉक्टर उमा पांडे जो हेड है इस टाइम, और इंटरनेशनल लेवल पे गायनिकोलॉजी की मॉडर्न साइड की वो जो है अध्यक्ष भी हैं और BHU की इस टाइम हेड भी हैं। तो वो उनके साथ में ये वर्क है श्वेता का। और उसने जो बुक लिखी है वो लिखी है रिव्यू ऑफ मूलाधार चक्र, उसमें एडिटर हैं हम। फिजियो एनाटॉमिकल कोरिलेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूलाधार चक्र, लैम्बार्ड से ये छपी है, तो इसमें एडिटर हैं हम और राइटर है श्वेता जी। और उनका रिसर्च पेपर है मूलाबंध योग थेरेपी एंड इट्स यूटिलिटी इन केसेस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन फीमेल्स, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। और ये किताब एक आ रही है जो हमारे प्रदीप कुमार पाल ने लिखी है, एडिटिंग हमने की है, एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रा एंड एनर्जी सिस्टम। तो ये प्रदीप का है, प्रदीप ने आज्ञा चक्र में काम किया है जो आगे आएगा। और कुमारी श्वेता जी के जो पेपर हैं उनको अब मैं बताता हूँ, ये ऊपर का किसमें छपे हुए वो सारे रेफरेंस है, इसे नंबर दिए गए हैं, आप उनको उस पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल ऑफ मूलाधार चक्र, रूट चक्रा इन आयुर्वेद। और ये IU में पेपर इनका छपा है, फिजियो एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस ऑफ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस विद मूलाधार चक्र कैडावरिक स्टडी, तो डिसेक्शन से उन्होंने उसको शो किया है। और नेक्स्ट पेपर जो ये है फार्मा साइंस मॉनिटर में उनका है मूल बंद पोटेंशियल वे टू प्रोटेक्शन यूट्राइन प्रोलैप्स, और ये इफेक्ट ऑफ मूल बंद योगा माइल्ड ग्रेड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। तो इस तरीके से ये डिटेल्ड जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन का ये लेटेस्ट पेपर है, असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ मूल बंद योगा थेरेपी इन हेल्दी वुमेन। इन्होंने इसमें ग्रुप लेकर जो किया है काम, ये इनके रिसर्च पेपर्स हैं। और इफेक्ट ऑफ योगा इन यूट्राइन इनकॉम्पिटेंसी, वर्षा गुप्ता है जो इस टाइम सीनियर रेजिडेंट हैं
ये उनके रिसर्च पेपर है। यूट्राइन इन्वॉल्यूशन और रिव्यू, तो इनको हमने टॉपिक दिया कि मूलबंध से किस तरीके से, और जो मूलाधार चक्र है तो वहाँ पे मूलबंध की एनाटमी है, तो उसको करने से जो डिलीवरी के बाद है कि रिकवरी कैसे होती है उसके ऊपर वर्क है इनका। कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्राइन इन्वॉल्यूशन एंड एनहेंसमेंट थ्रू आयुर्वेदिक अप्रोचेस, यह है उनका रिसर्च पेपर। तो मुक्त शब्द जर्नल है यूजीसी केयर लिस्टेड, उसमें इनका ये छपा है पिछले साल। और कंपैरिजन ऑफ sonographic changes in early postpartum period in normal vaginal and cesarean delivery, a systematic review, ये भी वर्षा गुप्ता जी का है। जैसा मैंने बताया उस टॉपिक के अनुरूप इन्होंने आईजे बीपीएस में इंटरनेशनल जर्नल सब हैं और उनमें ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उसकी डिटेल आप सीधे सर्च करके देख सकते हैं। मूलबंध रिव्यू स्टडी ये भी इन्हीं का है। और उसके बाद इसी एरिया की एनाटमी की क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो गुदमर्म के ऊपर अमरीश चांदना जो कि हमारे स्टूडेंट रहे, उनके गाइड हम हैं, ये हम लोग को सौभाग्य है। वो लेक्चरर है जो है दिल्ली में चरक वाले में कॉलेज में, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गुदमर्म इन सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ एनोरेक्टल डिसीजेस, ये इनका रिसर्च पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। स्टडी ऑफ गुद बलीज एंड इट्स अप्लाइड एनाटमी, ये वर्क हुआ, अंतेश चौधरी ने किया। और ए.के. द्विवेदी यहाँ पे शल्य के हैं, वो को गाइड हैं, तो उनके साथ में ये पेपर छपा, ए कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ भगंदर फिशुला इन एनोम, उसका उन्होंने वर्क किया है और उस पर मूलबंध कराया है। स्टडी ऑन एनाटॉमिकल चेंजेस इन पोस्टपार्टम वुमेन एंड देयर साइकोलॉजिकल स्टेटस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूलबंध एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये टॉपिक दिया पीएचडी में हमने प्रतिमा मौर्य, जो मनोविज्ञान की छात्रा थी। हमारे यहाँ एलाइड सब्जेक्ट वाले भी लोग पीएचडी करते हैं। और प्रोफेसर मंजरी द्विवेदी का सब लोग नाम जानते हैं, जो पूर्व डीन थी, वो उनकी को गाइड थी, उनके अंडर में ये वर्क हुआ। उनके रिसर्च पेपर्स हैं इफेक्ट ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम ऑन एंजाइटी लेवल इन पोस्टमार्टम वुमेन, तो ये सारे पेपर उसी से रिलेटेड हैं जो रिसर्च को शो कर रहे हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ द स्पेशल रेफरेंस ऑफ योगा, मनीष कुमार द्विवेदी, जयेश त्रिपाठी जी इनके को गाइड थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्रतिमा मौर्य। और ये दूसरी एक वर्क हुआ है जो टीना सिंगर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं समय संपूर्णानंद में, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ शुक्र व स्रोतस, क्योंकि इन्होंने टेस्टीज के सेक्शन किए हैं और उसका सीधा सीधा संबंध इन चक्रों से है, इसलिए मैं इस स्लाइड को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इनका पेपर छपा है एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ एंटी स्पर्मेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ विडंग, विडंग का इन्होंने जो है एंटी स्पर्मेटोजेनिक इफेक्ट देखा है माइस में, और इनकी को गाइड थी रोहना सिंह। तो ये रिसर्च पेपर इनका इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और इंटरनेशनल वर्क है ये। क्रिटिकल स्टडी ऑन स्वादिष्ठान चक्र इन मॉडर्न कोरिलेट्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अब स्वादिष्ठान चक्र पे काम किया कविता निगम ने और मणिपुर चक्र पे काम किया अलका गुप्ता ने। क्रिटिकल स्टडी ऑफ मणिपुर चक्र इन एनाटॉमिकल कोरिलेट्स एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उनका पेपर है कॉन्सेप्ट ऑफ षट चक्र विद इन द पुरुष, प्राचीन ग्रंथों में मणिपुर चक्र का वर्णन, नवीन युग में इसकी उपयोगिता, एनाटॉमिकल एंड क्लिनिकल ओवरव्यू ऑफ नाभि इन न्यू बॉर्न्स। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी में इनका पेपर छपा है IJBPR में, रिलेवेंस ऑफ योगा ऑन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ओबेसिटी एंड IBS एन अप्रोच थ्रू मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, मणि को क्यों मणिपुर कहते हैं कि मणि, क्योंकि वहां पर जो 10 दल हैं वो ऑर्गन्स हैं और वो मणि का पुर है, वहां एक मणि नहीं है, मणि का शहर है। और उन्होंने डायबिटीज IBS के ऊपर उसके साथ में उस डिसीज पे वर्क किया था। प्रोफेसर जयेश त्रिपाठी उनके को गाइड थे और ये रिसर्च पेपर है। और जो PhD और MD स्कॉलर होंगे वो रिसर्च पेपर माने समझते होंगे, क्योंकि अगर उतने रिसर्च पेपर आपको नहीं है तो आपको कॉल लेटर इशू नहीं होगा। तो ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ योगासन विद स्पेशल रेफरेंस टू पवन मुक्तासन, अलका गुप्ता, क्योंकि उन्होंने पवन मुक्तासन भी इसमें कराया था। तो ये उनके पेपर्स हैं अलका गुप्ता के। क्रिटिकल रिव्यू
षट चक्र का मानव जीवन में प्रभाव, अलका गुप्ता। और नाभि मर्म के ऊपर जो ये वर्क हुआ है, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ नाभि मर्म इन मॉडर्न कोरिलेट्स एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसको हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नाभि मर्म और नाभि चक्र एक ही जगह पे। तीर्थराज, इन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन के एस के त्रिपाठी हैं और मॉडर्न साइंस के शल्य के हेड थे डॉक्टर एस के गुप्ता और प्रोफेसर जे एस त्रिपाठी। ये तीन इनके को गाइड थे। 4 जनों ने मिलकर ये वर्क किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये होता क्या है, आयुर्वेदिक आचार्य हैज डिस्क्राइब्ड मर्मा एज नाभि चक्र, जो मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो एक्सिस बनता है या एक्सल बनता है वो एब्डोमिनल अरोटा और इंफीरियर वेना केवा से बनता है, और जो उससे प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर जो है जो 10 दल बन रहे हैं, तो हर एक के ऊपर एक एक ऑर्गन लगा और एक ग्लोब टाइप एब्डोमेन में ये जो है अपीयरेंस आ रही है, और वो है नाभि चक्र। और उसका जो मर्म है वो है एब्डोमिनल अरोटा एंड इंफीरियर वेना केवा एंड वैगस नर्व। तो ये इसका कंक्लूजन मैंने बता दिया इस वर्क का। तो ये उनका रिसर्च पेपर है तीर्थराज जी का, एंड अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द नाभि मर्मा विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्रहणी रोग। उन्होंने उसके साथ साथ 4-5 रोगों को लिया था। स्टडी ऑफ नाभि मर्मा विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्जिकल प्रोसीजर्स, conceptual study of नाभि मर्मा एंड चक्रा। तो ये उनके पेपर हैं। द नाभि मर्मा एंड एनाटॉमिकल कोरिलेट्स, एनाटॉमी ऑफ नाभि मर्मा थ्रू कैडेवरिक स्टडी। तो उन्होंने कैडेवरिक स्टडी की, उसके लिए रिसर्च पेपर छापा है। और न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ आज्ञा चक्र एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये सारे मेडिकल अफसर बने हुए हैं। और ये प्रदीप कुमार जी भी मेडिकल अफसर हो गए, उनकी पत्नी भी हो गई हैं। इन्होंने पीएचडी भी हमारे अंडर में की है। ये एमडी का इनका टॉपिक है हमारे अंडर का, साइंटिफिक एवेल्युएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ओवर अर्धा भेदक माइग्रेन। तो माइग्रेन के ऊपर आज्ञा चक्र से उन्होंने उसको ट्रीट किया है। और इनके को गाइड थे यहाँ के न्यूरोलॉजी के हेड वीएन मिश्रा। और दूसरा इनका पेपर छपा एशियन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च, इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन रक्तगतवात। तो 2 डिसीज इन्होंने ली थी, हाइपरटेंशन है ये, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेगुलेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थ्रू स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम। ये भी प्रदीप कुमार पाल। तो ये जर्नल ऑफ आयुष में ये छपा है इनका। तो ये हम आपको रिसर्च पेपर दिखा रहे हैं। सबके नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए, गिनिए कि कितने प्रदीप जी ने एमडी पीरियड में पेपर छाप दिए। क्रिटिकल व्यू ऑफ हेल्थ इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग बाहिरंग योग नियम एंड प्राणायाम, जो इसके बेसिक बात है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेगुलेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये हमने उनके पेपर दिखाए। अब यहाँ पे हम बता रहे सोहम जो प्राणायाम की एक पूरी की पूरी पद्धति है। हा कारेण बाह्यति, सा कारेण विसित, पुनः हंसम हंसेत्युत मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। योग चूड़ामणि का यह है। इसी हंस तत्व के साथ श्वास के प्रति सजग होना। सोहम प्राणायाम होने पर ओम प्रणम अक्षर बनता है। ईश्वर का एक नाम है। आ उ और माँ अव्यक्त होने शब्द है। तो इस प्रकार से ये होता है। कुंडलिनी का जागरण है। सुख देवे सुख होते, दुख देवे दुख होत। दीज आर द रेफरेंसेस। और हमने ट्राई किया कि समय के अंदर कर लें, सारी स्लाइड दिखाने का प्रयत्न किया। थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली प्रोफेसर सुनील कुमार यादव, डीन ऑफ वेलफेयर। थैंक यू। Dear delegates, we hope these sessions have inspired ideas and discussion amongst all of us. तद्विश संभाषा के बिना यह सत्र अभी अधूरा है. I request all the delegates to put forward your questions in the message box for the interactive session, and I now invite Dr. Isha Harshwani, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, to conduct the interactive session. Ma'am, please. पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्वेश्चन ये है, संप्रज्ञात समाधि that can be achieved by the meditation over the Agya Chakra. Research is told that the pituitary and the pineal gland activation is related there. So through which process this activation can be done
to attain a sampragyata samadhi, and what is the relation between this pituitary activation, pineal gland activation with this sampragyata samadhi? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। Thank हम you, sir. यहाँ से एक जो हमारे यहाँ कोर्स चलता है साउथ कैंपस में योग का, तो मंजरी द्विवेदी जी ने हमको भेजा था केवल्य धाम लोनावाला। तो लोनावाला में हम लोग गए, वहाँ की रिसर्चेस कैसे होती हैं, क्या होती हैं योग का। तो देखिए बेसिकली हम लोग एनाटॉमी के छात्र हैं, और ये जिस आप समाधि की बात कर रही हैं, तो हम लोग उस फील्ड में उतना ही बोलते हैं जितना हम करते हैं। यादव जी समझ रहे होंगे कि जो हम करते हैं वो हम बोलते हैं, क्योंकि हम सुश्रुत के शिष्य हैं। तो समाधि ना तो हमने लगाई है है ना। तो उन्होंने जो केवल धाम से बताई, तो वो ये स्टेजेस होती हैं कि जब आप निष्काम कर्म भाव में चलते हैं, तो आप जो है समाज से अपने को डिटैच कर लेते हैं, और आपके पास कोई भी एक भी थॉट नहीं रह जाता है। जब आपके पास थॉट नहीं रहता, शून्य हो जाता है। अब वो शून्य जब कंटिन्यूएशन में चलता है, तब उस वही स्टेज मेरी समझ में समाधि है, और वो योगियों को होती है। और अभी हम लोग सर्विस में है, शून्य में नहीं जा सकते हैं। हाँ, हम निष्काम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक ऐसे निष्काम की कर रहे हैं कि हम बिना किसी लाभ के अपने छात्रों को अपने जैसा कैसे बना सकते हैं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतनी नॉलेज। और रही बात जो अभी आपके पूर्व के प्रश्न है, अगर उसमें आप कहें तो मैं थोड़ा ऐड कर दूं। पूर्व के प्रश्नों में एक चीज ये जो मैंने पाई, क्योंकि अपनी रिसर्च या जो हमारे स्कॉलर्स उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर वो लाइट में चीज आती है तो सबको पता हो। क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, मैंने एक स्लाइड लगाई थी कि वेवलेंथ की, कितना हम देख सकते हैं, कितना हम सुन सकते हैं। तो हम जो है एक्सरेज नहीं देख सकते, लेकिन एक्सरे करते हैं। और अनाहत चक्र है, तो हम एक साउंड को सुन सकते हैं और एक को नहीं सुन सकते हैं। तो जो हम, और एक उसके अलावा भी चीजें हैं, तो जो अलावा चीजें हैं उनको कहा गया कि वो इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, वो सूक्ष्म है। तो ये जो वेवलेंथ का पैरामीटर है, उसी के ऊपर कलर्स बनते हैं। ये आप कितनी फिजिक्स समझते होंगे। वो वेवलेंथ जो है कलर से मिलती है, और वो वेवलेंथ इन चक्रों से मैचिंग करती हैं, और वो साउंड की भी हैं, वो लाइट की भी हैं। तो एक तो ये चीज हुई साउंड और लाइट का, ध्वनि का, और जो प्रकाश की बात जो बात कही आपने। और उसके बाद हम बात करते हैं दलों की। तो दल की जो बात कही, तो जैसे मैंने कहा मणिपुर चक्र पे 10 दल हैं। तो 10 दल वो क्या हैं? तो जो लीवर के पास प्लेक्सस, लीवर के पास बन रहा है, तो वो एक दल है। किडनी के पास जो बन रहा है वो एक दल है। स्प्लीन के पास जो बन रहा है वो एक दल है। तो ऐसे 10 जगह पे प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है, तो वो एक एक दल है। तो बॉडी में, और जो उन्होंने केवल इमेजिनेट किया है, वो उसको आयुर्वेदज्ञों ने नेचर से कंपेयर किया है। नेचर में कमल है, और बॉडी में क्या है? बॉडी में नर्व्स हैं, तो वो प्लेक्सस फॉर्म कर रही हैं। आर्टरीज हैं, एनास्टोमोस कर रही हैं, वो भी वहां पे फॉर्म कर रही हैं। और लिम्फेटिक्स भी हैं। तो ये 4 प्रकार की सिराएं होती है जो सुश्रुत ने की। तो वो जो 4 प्रकार की सिराएं की, तो वात वह है। तो वात का जहां से संबंध जब आ जाता है, क्योंकि वात के कई मीनिंग हैं, तो एक मीनिंग हम जो है नर्व्स के रूप में रेफरेंस में लेते हैं। तो नर्व्स के जो प्लेक्सस फॉर्म हो रहे हैं तो बॉडी में, तो वो 10 दल। क्योंकि एक आपने और एनाटॉमी में चीज पढ़ी होगी, और मॉडर्न एनाटॉमी के बहुत से विजुअल्स देखे होंगे, क्योंकि आजकल बच्चे वीडियो ज्यादा देखते हैं, और बहुत ही टॉप क्लास वीडियोस आ गए हैं। तो आप बॉडी में से सब कुछ निकाल दीजिए और खाली नर्व्स रहने दीजिए, और एब्डामिन के देख लीजिए, ऐसे हर जगह की दिखाई जा रही है। हार्ट की भी दिखाई जा रही है, खाली नर्व्स रहेंगी, या खाली आर्टरीज रहेंगी, बाकी सब हटा दिया। और इस तरीके से डिसेक्शन कर करके जो है बहुत से म्यूजियम में जो एनाटॉमी के ये चीजें रखी भी गई हैं। तो वो जो चीज रखी जाती है, आपने बॉडी का सब कुछ निकाल दिया है, खाली वहां नर्व्स का रह गई है। तो वहां पे ये कल्पना, ये इमेजिनेशन है
हमारे आचार्यों का कि वहां 10 प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, वो 10 के दल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इमेजिनेशन वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थ पीपल है, तो पीपल में जो उसकी वेन्स हैं, तो आप पीपल का सुखा दीजिए तो हरा वाला पार्ट हट जाता है, वो दिखता है। तो ऐसे ही बॉडी का हर कुछ निकाल दीजिए, खाली नर्व्स देखिए, तो वो ऑर्गन के ऊपर इस तरीके से 10 दल बन रहे हैं। और रही देवता की बात, तो देवता के बारे में मेरा कहना यह है कि जैसे आप जो है अगर ये करना चाहें, आप एक कुश्ती का एथलीट बन के जो है ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे हनुमान की भक्ति करते हैं। तो हमारे यहाँ आगम एक है वेदों में, तो हमारे जो गुरु जी हैं समय जो हमारे साथ योग में गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, तो ये उनका कहना है कि जो आगम है, तो हमने एक चीज मूर्ति बना दी और हम उसकी जो है पूजा कर रहे हैं, और जो शक्ति का देवता हमने बना दिया, उसके लिए जो सिंबल बनाया तो वो हमने हनुमान जी को बनाया, और जो धन के लिए बनाया तो लक्ष्मी को बनाया। तो वो सिंबल सामने रख के तो हम जो है निर्गुण और सगुण भक्ति है, तो हर कोई निर्गुण भक्ति नहीं कर सकता, तो सगुण भक्ति है, सगुण में है मूर्ति पूजा। तो वो उस चीज का इमेजिनेशन करते हैं कि ये ही हमको ये चीज दे देगा, हनुमान जी हमको शक्ति दे देंगे, लक्ष्मी जी हमको धन दे देंगी। तो इस तरीके से उन्होंने हरेक का देवता जो है बताया है। उसके पीछे लॉजिक ये है, जैसा ये मेरी कल्पना है, बाकी तो विद्वान लोग हैं और सभी लोग अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने थॉट अपना रखा। और जो आप पूछना चाहें वेलकम। ईशा जी पूछ रही, कौन पूछ रहा है? हाँ, Thank you, sir, for your valuable kind of information for this question. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Well explained, sir. Now the no more questions is there. And, thank you, sir. Both speakers, Dr. Jayakrishnan sir and Dr. Avasthi sir, for your valuable inputs to this question session.